मार्क योर अटेंडेंस फटाफट। हम्म लिंक चालू नहीं हुआ है सर, एक्टिव नहीं हुआ है लिंक। लिंक एक्टिव नहीं है। मार्क योर अटेंडेंस। So in the last class, what we have discussed, please mark your attendance. In the last class, we have discussed about the forward bias and reverse bias. Okay. So in the forward bias, what we have seen initially, if we connect our p-type semiconductor with the positive terminal of the supply and n time with the negative terminal of the supply, then this is called as that forward bias. junction is in forward bias, right? And what is happening in the forward bias? What was happening there? When we apply voltage on it, then the depletion layer break down and the current is starting flowing through the diode. So that you have to, there is a, what we can say, if we look to the diagram which is showing on the screen, okay, the electron will go to the p side and holes will move to the n side. And side. And gradually depletion layer is going to be decreased because of in that region so many free of electron will be available. Okay. स्क्रीन नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं आ रहा स्क्रीन पे। नहीं सर, आपका स्क्रीन नहीं से दिख रहा। फोटो आ रहा है। ओके हाँ सर अब आ गया। okay, that was the case. Now let us go move ahead with the reverse bias. This was the actual thing that we have discussed in the last class. So in the reverse bias, what is happening over there? If you apply a P-type, P side connected with negative terminal and N side connected with positive terminal. so what will happen if we connect like that? Depletion layer increase करेगा, मतलब और बहुत ज्यादा हम लोग अगर सप्लाई देंगे तब वहां से एन टाइप से जो हमारा ये होल्स है वहां से वो पी टाइप में आ जाएगा और यहाँ से पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है वो
चल जाएगा उस साइड। No, it will break. Okay, the things is that the depletion layer यस सर। will break and we have sharp increase in the head. Okay. Okay. So now this is called as the breakdown. Okay, the voltage at which your reverse the voltage at which your in the reverse bias direction, if there is a flow of current, then this is called as a reverse or you can call it breakdown into the reverse bias. Okay, configuration, because initially there is no flow of current, and if there is breakdown will happen into the system, then there will be a huge flow of current. Okay, huge amount of flow of current as compared to the earlier. Suppose अभी 0 चल रहा है और वो माइक्रो एम्पियर में 150 130 ऐसे करके करंट फ्लो हो जाएगा. Okay, after breakdowns. So you'll see there is two type of breakdowns. One is called as a avalanche breakdown and second one is called as a Zener breakdown. Okay. क्या सर होता है? ज्यादा अच्छा किसमें करंट फ्लो होता है, ये फॉरवर्ड में या रिवर्स में? Obviously फॉरवर्ड में ना, रिवर्स बायस में बहुत कम करंट फ्लो होगा, बट द नेचर इज कि वेरी शार्प होगा, क्रिस्प टाइप का होगा. विल सी द ग्राफ. ओके, एंड वी आर ऑपरेटिंग the diode in the forward bias. Some application is also available for the reverse bias. Okay, if we carefully if we dope, है ना, concentration को मैनेज करके डोपिंग करेंगे तो हमको डिफरेंट एप्लीकेशंस आते हैं. ओके, उस हिसाब से डिफरेंट डायोड का मैन्युफैक्चरिंग होता है, बनाया जाता है. ओके, ठीक है. यस सर. क्या होता है अगर ये वाला आप देखो, जस्ट टू गिव यू सम आइडिया, ये यहाँ से सपोज एक एक्सेलरेट हो गया, अभी बाहर से हम दिए एक पोटेंशियल, तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट हो गया ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, दूसरे जो एटम है उस पे जाके स्ट्राइक करेगा. ठीक है, तो क्या होगा, वो जो कोवलेंट बाउंड था वो टूट जाएगा. सेम थिंग, जब दो फ्री हो गया, अब दोनों एक्सेलरेट होके फिर दूसरे को मारे, ऐसे करके वो फ्यू सेकेंड में, फ्यू माइक्रो रेंज में क्या होगा, अचानक से एम्पल अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा इधर, और you'll have the current flow into the system. Okay, और एक we'll discuss this in this. I am giving you idea how this free electron will come into the system. Okay, जैसे आप एक्सटर्नल एनर्जी दोगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो तो एक्सेलरेट होंगे ही ना, तो क्या करेगा, नियर बाई अपने एटम को स्ट्राइक कर सकता है. ओके, उसके कारण क्या होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके मल्टीपल में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएगा, एंड विल हैव so many free of electrons into the system, and this leads to have a current into the system. Okay, in the reverse bias, in the reverse direction like this, ऐसे होता है. Okay, ये रिवर्स अगर पोटेंशियल है V in the negative direction, then initially you'll see there are minimum मतलब no current flow. Okay, 11. if there is a flow of current, is due to only the minority carriers. Okay, तो क्या होगा, ये शार्प यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया जंक्शन. ओके, इस लेवल पे, इस वोल्टेज पे अभी ऐसा एकदम करंट ह्यूज अमाउंट में फ्लो करेगा. इफ सर्टेन लिटिल अमाउंट ऑफ voltage will change, large number of current will flow into the system. Okay, कोई दिक्कत है?
एक बार ग्राफ फिर से बताइएगा ना, सब जगह बता रहे थे। हाँ, विल सी द ग्राफ। ओके, विल सी द, डोंट वरी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। So this is the energy band diagram of whole combine. If you see, when there is a reverse bias, what is happening? When there is a forward bias, what is happening? And when there is a reverse bias and zero bias, what is happening? Okay. सर If you जीरो बाइस see, में क्या होता है सर? जीरो बायस मतलब कुछ नहीं दिए है, कोई पोटेंशियल नहीं दिए है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कूद जा रहा, नहीं सर? हाँ, नहीं ये तो आपको बताए थे ना, एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे निकालते हैं। We have discussed हाँ this. Okay. So this is what? Built in potential. ये इतना एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये वोल्टेज, जब इसमें करंट कंडक्शन होने लगे तो कितना हमको चाहिए एनर्जी, इतना, तब इसमें करंट कंडक्शन होने लगेगा, है ना। इसका कंडक्शन बैंड और उसका कंडक्शन बैंड सेम एनर्जी लेवल पे आ जाए तो इजीली करंट फ्लो होगा, राइट, है ना। जब फॉरवर्ड बायस आप अप्लाई करोगे तो ये एनर्जी कितनी बचेगी, एक तो जितना चाहिए माइनस वी एफ, जो आप एनर्जी अप्लाई कर दिए हो, है ना। अभी सपोज 5 चाहिए, आप 2 अप्लाई कर दिए, तो ये गैप कितना रह जाएगा, 5 माइनस 2, है ना। यस सर। तो VBI माइनस BF, BF इज द व्हाट, फॉरवर्ड वोल्टेज जो आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। यस सर। रिवर्स बायस में क्या होगा, ऑब्वियसली दोनों का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना, यस सर, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप एक तो एनर्जी चाहिए थी उसको, लेकिन आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव डायरेक्शन में दे रहे हो, तो माइनस सर। तो साइन था ही, माइनस, और माइनस आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, ये रिवर्स बायस का वोल्टेज है, ठीक है। ये एनर्जी बैंड डायग्राम है when there is no voltage is applied, when there is a voltage applied, and this is in the forward condition and this is in the reverse condition. जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो दो कंडीशन होगा कि आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में। जब वो फॉरवर्ड बायस में है तो जनरली आपने जो एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया था, ठीक है, ये आपका फर्मी लेवल था, है ना। तो ये जो एनर्जी गैप है आपका P का कंडक्शन बैंड में और N के कंडक्शन बैंड में, उसको हमको मेकअप करना है ना। तो हम कहां से करेंगे, बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई देंगे। तो सपोज इस एनर्जी को हम बोल रहे हैं कि QVI है, इतना हमको चाहिए, है ना। जब आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, ये हाइट धीरे धीरे घटेगा, घट के पूरा 0 हो जाए एक वोल्टेज लेवल पे। ओके, जितनी एनर्जी की दरकार है अगर आप बाहर से दे दोगे उसको तो क्या होगा, ऑब्वियसली दिस विल गोइंग टू डिक्रीज। ओके, so that means the voltage or the energy required by this what we can say, if we currently if we look onto the कि अभी कितना और चाहिए मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय दिस इज व्हाट, QVBI माइनस VF, है ना। ये ज्यादा इधर गंदा हो गया, इसको फिर से लिखते हैं। ये एनर्जी लेवल कितना होगा, ये एनर्जी कितना होगा, पहले था क्या, QVBI,
आपने बाहर से एक एनर्जी दे दी इसको, तो अभी कितना एनर्जी और चाहिए, वो क्या होगा? सो क्यू वी बी आई माइनस वी एफ, जो अप्लाई आप कर चुके हो उतना घट जाएगा, तो जो बचेगा उतना चाहिए और हमको। सपोज 5 Yes, वोल्ट sir. उसको चाहिए था, आपने एक वीएफ एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल वोल्टेज, ठीक है, 3 वोल्ट आपने दिया हुआ है, तो रिक्वायर्ड कितना बचा है? 2 वोल्ट, है ना। अभी इसी 3 को बढ़ा दिया, अब 4 कर दिए, तो रिक्वायर्ड कितना बचेगा? 1। इसी बी को और बढ़ा दिए, 5 कर दिए, तो रिक्वायर्ड कितना बचेगा? 0. So the final equation will look like what? What if we write that process into the equation, then this is the way: Q VBI minus VF is the energy required, or this is the energy required by this configuration. Okay, clear? तो ये हाइट जो आपका कम और ज्यादा होगा वो किस पे होगा? VBI माइनस VF पे। सेम थिंग फॉर द रिवर्स बायस। कोई डाउट है इसमें? सर हाँ, अगर बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल सप्लाई कर दिए तो देन व्हाट विल हैपन सर? ज्यादा पोटेंशियल है, आराम से चलेगा, क्या होगा? कुछ नहीं। ओके सर। ज्यादा पोटेंशियल आप अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? आराम से करंट फ्लो करेगा, है ना। बहुत ज्यादा कर दिए तो जल जाएगा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर करंट उसमें ज्यादा फ्लो हो गया तो वो जल जाएगा। सपोज आपका बल्ब ही ले लो, या आपका घर का मोटर ले लो, या कोई भी चीज ले लो, अगर उसके रेटिंग से ज्यादा आपने अप्लाई कर दिया या ज्यादा करंट ड्रॉ हो गया तो वो जल जाएगा, वो अप्लायंस। व्हाट द पॉइंट? यस सर। ठीक है, किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं सर। See, these things will not come into the picture for your examination. I am just giving you because your syllabus is very simple. It's not that you have to go into the deep. But what is actually happening, just I am giving you the brief idea. Okay. 2 ही 3 चीज है इस पूरा मॉड्यूल में सीखने के लिए, ठीक है। पहला जो स्टार्टिंग हम लोग किए थे सेमीकंडक्टर के बारे में, है ना, फिर डिफरेंसेस, फिर एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ नॉर्मल सिलिकॉन, साथ में जर्मेनियम भी देख लेना। दोनों चीज से मतलब दोनों पे जो प्रोसेस हो रहा है दोनों पे एकदम सेम है। ओके, अगर जर्मेनियम से आप बनाओगे सेम चीज है, सिर्फ जर्मेनियम एटम आएगा बीच में और बाकी सारी चीजें सेम ही रहेगी, ठीक है। बस जो ये नी वोल्टेज और जो फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो इसमें बहुत कम है, जर्मेनियम में ओनली 0.3 वोल्ट, और उसमें 0.7 वोल्ट सिलिकॉन, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो हम लोगों ने क्या देखा था स्टार्टिंग में, उसके बाद है ना डोपिंग देखे, फिर डोपिंग का एनर्जी बैंड डायग्राम देखे, एन का और पी का, है ना। फिर दोनों को कंबाइन किए तो कैसा एनर्जी बैंड डायग्राम आया, फिर कंबाइन करने के बाद हम वोल्टेज इसको सप्लाई किए तो क्या एनर्जी बैंड डायग्राम आया, राइट। यस सर। सप्लाई देने के बाद हम फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का कैसे मैकेनिज्म हो रहा है, हाँ। फिर हमारा जो करंट डेंसिटी था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, है ना। ये 5-6 चीजें हैं जो आपको देखना है इस मॉड्यूल से। ओके, it's very simple, not that much you have to worry about. Just you have to write. I will give you an assignment and 1 हफ्ते के बाद जमा कर देना है। इस बार मैं सैटरडे को अपलोड करूंगा, ठीक है। कंबाइनिंग यस सर। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 से। ये सबको समझ में आ गया?
सी देखो इतना नहीं दिमाग आपको, दिस इज व्हाट, दिस एनर्जी इज मेजर्ड इन व्हाट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, है ना, वोल्ट। है ना। ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप था हाँ आप सर, किस यूनिट में मेजर कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना, इलेक्ट्रॉन इसीलिए वोल्ट। इसमें क्यू मल्टीप्लाई किया गया है। ओके ठीक है, दिस इज द वोल्ट एंड दिस इज द यस सर। क्यू। सो जब आप इसको, इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है अभी नॉर्मली, है ना, इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है और आपने एक एनर्जी दे दिया, बाहर से सप्लाई कर दिया, तो अभी कितना बचेगा इसमें, ये हाइट कितना बचेगा, क्यू इंटू माइनस कर देंगे सर जी। माइनस कर देंगे, और इसमें क्या होता है, ये हाइट बढ़ जाता है ना, ये डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो कितना से बढ़ गया, जितना आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, है ना, जैसे जैसे आप रिवर्स बायस में वोल्टेज हाँ बढ़ाते सर। जाओगे और ये रिफ्लेक्शन विड्थ बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ओके यस सर। सो दिस इज जस्ट दिमाग में रखना है ये वाले डायग्राम को, हो सकता है क्वेश्चन बस पूछ दे आपको, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। ओके okay, next, this is for the zero bias and this is for the forward bias, this is for the reverse bias. Now you'll see the charge density is not important for you, but just to give you some idea. Okay, अभी ना हम लोग डोपिंग करते हैं, वो प्रोसेस है कि आप लीनियर डोपिंग कर रहे हो, मतलब एक ही जैसा सब पूरा पूरा ये हो कि थोड़ा कम बेसी है, तो नेचर चेंज हो जाए उस डायोड का। व्हाट द पॉइंट, एक खेत है तो आप अगर बुनाई मतलब बुआई करते हो तो आप एकदम परफेक्टली कर रहे हो, सब जगह उतना ही दे रहे हो कि कहीं ज्यादा दे दिए कहीं कम दे दिए, समझ रहे हो ना। तो चेंज हो जाएगा चीज। ओके तो देखो ये जो आपका पीएन जंक्शन था, ठीक है, नॉर्मली में ऐसा रहता है, ठीक, तो अगर उसको चार्ज डेंसिटी में हम रिप्रेजेंट करें, ओके, तो वो ऐसा होगा, पॉजिटिव था हमारा, यहाँ पे ये वाला सेक्शन रिप्रेजेंट लाइक दिस, एंड नेगेटिव को ऐसे करेंगे, ठीक, ये है आपका मतलब नियर टू द एन एंड नियर टू द एक्स। ओके ये हो आपका विड्थ हो गया डिप्लेशन लेयर का, एज पे है ना, हाँ ये जो चीजें मार्केशन है वो एज पे है एकदम। सारे लोग अटेंडेंस बना दो, ठीक, तो द नंबर ऑफ uncovered charged or charged particle present into the n side is must be equals to the p side, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल होगा किसके, निगेटिव चार्ज के, जो नेगेटिव आप, चार्ज। हाँ जो आपका चार्ज ऑफ न्यूट्रलिटी बोलता है, ठीक है ना, नियर द जंक्शन। ओके सो ओवरऑल what we can write like that. Okay this is what will have the equation. अगर आप डोपिंग हाई कर दोगे तो डिप्लेशन लेयर नैरो हो जाए, छोटा हो जाए। ओके यस सर। सो क्या होगा जब Na इक्वल्स टू Nd होगा, मतलब Xn इक्वल्स टू
एक्सपी हो जाएगा। ओके, ये हम लोग देख चुके थे ना। अरे जितना एक्सेप्टर एटम्स रहेगा उतना ही ना ये रहेगा, है ना, या जितना डोनर एटम रहेगा एनडी उतना ही ये रहेगा, ये, हाँ सर। है ना। बस वो मैथमेटिकल टर्म में लिखा हुआ है, ये आपके लिए इतना लगेगा नहीं आपको, to just give you an idea that what will happen if you dope more, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे छोटा होता जाए, नैरो होते जाए। ओके, यस सर। now the xn and xp is the width of the depletion layer on the n side and p side junction, only junction के पास, ये वाला का बात हो रहा है। ये जो इन नेगेटिव 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 और ये पॉजिटिव 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 था, ये इसका बात हो रहा है। टोटल इज डब्ल्यू, डिप्लेशन लेयर का बात करते तो xp प्लस xn इज गोइंग टू बी w, ठीक है। ओके, तो उस हिसाब से देखोगे तो आपका, अगर सेम चीज है कि अगर डोनर ज्यादा बड़ा हुआ एक्सेप्टर से तो क्या होगा, है ना, W किसके बराबर हो जाएगा, बहुत बड़ा है, और ये बहुत बड़ा है तो क्या होगा, लाइक दैट। ओके, समझे? हाँ सर। एवरीबॉडी प्लीज, इफ यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट लेट मी नो, अदरवाइज मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। Yes, sir. See what is calling it is here like that, अगर ऐसा है सिस्टम आपका, ये नेगेटिव था इधर सपोज, और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। व्हाट, अगर डोनर एटम मच मच ग्रेटर देन है एक्सेप्टर एटम्स, तो ये P था और ये N था। डोनर एटम मतलब N साइड की बातें हम कर रहे हैं। तो अगर डोनर Yes, एटम sir. ज्यादा है किससे, एक्सेप्टर एटम से बहुत बहुत, तो क्या होगा, ये वाला लगभग 0 हो जाए। समझ रहे हो, सिर्फ Yes, sir. ये साइड को डोमिनेटिंग रहेगा, ये वाला साइड। डिप्लेशन लेयर में क्या था, xp प्लस xn था टोटल विड्थ, तो अभी ये वाला लगभग 0 हो जाएगा, एकदम 0 नहीं होगा बट नियर इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या हो जाएगा, डिप्लेशन विड्थ टोटली डिपेंड करेगा NP हो जाएगा सर। एक्सेप्टर एटम, हाँ, नैरो हो जाएगा एक साइड से, है ना। सेम चीज अगर एक्सेप्टर एटम्स ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन पार्ट जो है डिप्लेशन रीजन में वो बहुत घट जाएगा, लगभग 0 के नेग्लिजिबल बराबर, हो जाएगा। और बस इसके इक्वल्स रह जाएगा। ओके, Yes, sir. so this was the main equation जो previously भी आया था। अगर अनइक्वल्स रहेंगे तो अनइक्वल आपका डिप्लेशन विड्थ आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि x x मतलब p साइड सपोज 2 mm है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और n साइड भी डिप्लेशन विद 2 mm है, तो टोटल 4 mm हो गया।
है ना। लेकिन अगर आप डोपिंग इधर हेवी कर दिए तो ये घट के क्या हो जाएगा, 2 mm ही रह जाएगा डिप्लेशन विड्थ पूरा, 2 पॉइंट समथिंग, बिकॉज इट्स नॉट कि एकदम पूरा 0 हो जाएगा, नियर इक्वल्स टू ये पोर्शन जो 2 है वो हो सकता है कि 0.9 हो जाए या 0.7 हो जाए, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कुछ समय के लिए फॉर द कैलकुलेशन। ओके, यस सर। so then this is the total depletion width, W is the total depletion। सेम चीज NAND का भी दिखाया गया, वही चीज है, ठीक है। और दो चीज आप डिप्लेशन विड्थ अगर आपको निकालना है तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग अ डिप्लेशन विड्थ। ओके, दिस इज प्रिसाइज फॉर्मूला फॉर calculating the depletion width। okay, N side and P side। okay, 1 by ND under root square 2 epsilon SI VBI NAND divided by Q plus NA plus N। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेम्बर इफ क्वेश्चन गोइंग टू बी आस्क्ड। कैसे पूछ देगा कि अगर डोपिंग कंसंट्रेशन इतना है, हाँ, और बिल्ट इन पोटेंशियल आपको पता ही है कितना होता है, वो है ओके, जो V0 था स्टार्टिंग में। ओके, तो आप बताओ कि है ना डिप्लेशन लेयर डोमिनेटेड इन एन साइड कितना है। इस तरह से मान लेते हैं कि आपको दे दिया डिप्लेशन विड्थ ही दे दिया, हाँ, और पूछ देगा कि कंसंट्रेशन क्या है, लाइक दैट। ओके, वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू पुट all the value into the formula, you will get the answer। okay, I will see यस सर। the depletion width, total depletion width, है ना। दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे दोनों को तो ये कॉमन आ जाएगा, तो आपका ये आएगा टोटल डिप्लेशन विड्थ। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास 3-4 फॉर्मूलेस हो गए, है ना। पहला करंट डेंसिटी वाला, फिर कोई मोबिलिटी का रिलेशन था, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वो भी याद रखने का है। उसके बाद और क्या आया हमारे पास, एक मास एक्शन लॉ आया था, ओके, एक बिल्ट इन पोटेंशियल आया था KT/Q ऐसे करके ln and Na into Nd divided by Ni², ओके, वो एक था। और इधर जो 2-3-4 आपको मिला, ओके, एक जगह आप नोट डाउन कर लेना कॉपी में, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आसानी होगी। ओके, ऐसे लास्ट ईयर कोई न्यूमेरिकल उतना आया नहीं था क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, ठीक, बट करने से अच्छा है क्योंकि यू विल डेवलप योर स्किल। आप फिर बिना पढ़े एग्जाम में आप लिख सकते हो अपने लैंग्वेज कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया कुछ कि हाँ कि डोनर एटम को बढ़ा देंगे तो क्या इफेक्ट होगा डिप्लेशन लेयर पे, है ना, एक्सेप्टर आयन को बढ़ा देंगे ज्यादा तो क्या इफेक्ट होगा डिप्लेशन लेयर पे। तो दिस टाइप ऑफ वाई क्वेश्चन यू कैन आंसर। ओके, ये जरूरत नहीं है आपका, बट देख लो, है ना, कि कैसे आप उसको डोपिंग करोगे। तो दो तरह से डोपिंग करते हैं, एक को बोलते हैं स्टेप ग्रेडेड जंक्शन और दूसरे को बोलते हैं लिनियरली ग्रेडेड जंक्शन। ठीक है, मतलब कैसा आप उस पे डोपिंग करते हो, यूनिफॉर्म करते हो, कि जैसे जैसे आप जंक्शन से दूर जाते जा रहे हो डोपिंग का इंक्रीज और डिक्रीज करते जा रहे हो। दो पैटर्न्स, है ना। सो स्टेप ग्रेडेड जंक्शन में क्या होता है, इम्प्यूरिटी डेंसिटी इन द सेमीकंडक्टर पूरा कांस्टेंट होता है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं, ऐसा नहीं, ठीक। इन लिनियरली ग्रेडेड जंक्शन में क्या होता है, इम्प्यूरिटी का जो डेंसिटी है वो लिनियरली वेरी करता है डिस्टेंस अवे फ्रॉम द जंक्शन, ठीक।
मतलब ये जंक्शन है सपोज, तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे है ना, डोपिंग का कंसंट्रेशन वेरी करेगा, ओके, लीनियरली, ठीक। बट स्टेप ग्रेडेड जंक्शन में क्या होगा, पूरा में डोपिंग सेम होगा, कांस्टेंट रहेगा। यस सर। कांस्टेंट रहेगा, ओके। ये भी चीजें थोड़ा ध्यान में रखना है, स्टेप ग्रेडेड जंक्शन एंड linearly graded junction. Now that ग्राफ का जो हम लोग बात कर रहे थे, we'll see into the next class, और तो खत्म हो गया टाइम, okay, so I think we'll see this into the next class also. Just I'm giving you, this is the diode, we have applied a voltage potential varying, हम उसको वैरी करेंगे, है ना, एक एमीटर लगा दिए जहां से हम करंट मेजर कर सकते हैं, ओके, और एक वोल्टमीटर लगा दिए जहां से हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा, ठीक। यस सर। रिवर्स बायस में कैसा आएगा, we'll discuss into the next class from here onwards, okay. Reverse bias, okay, we'll discuss, okay. सारा अटेंडेंस बना लिए सब लोग? हाँ सर।